classes. Today we are going to do second chapter in history. That is Europe and India. Very interesting lesson. Keep your pencils ready. Refer to your textbook. Page number 5. During the modern period, the various happenings in Europe had its impact on India. Therefore, while studying the period of modern Indian history, we have to study the events happening in Europe during the period. Now, we know that how Britishers have ruled India, तो England के बारे में भी, Europeans के modern history के बारे में भी, modern period के बारे में हमको study करना है. Period of Renaissance. Renaissance is like a rebirth, new changes. In history of Europe, the last phase of medieval period, that is 13th to 16th century, is known as the period of Renaissance. During this period, Reformation, underline karo, religious reforms movement and geographical discoveries laid the foundation of modern area. Hence, this period is also known as the age of Renaissance. Renaissance is like new changes. कुछ नए-नए discoveries हुए, नए-नए कुछ रूल्स फॉलो हो गए और कुछ नए चीज़ें आ गई. यूरोपियंस ने नए-नए रूल्स डिस्कवर किए और एक डायमेंशन मिल गया, एक आगे बढ़ने का, एक मॉडर्निटी के तरफ बन गया. तो यूरोप और इंडिया के बीच में हम देखेंगे. ड्यूरिंग द पीरियड इन द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, अंडरलाइन करो, फिलोसॉफी, किस तरीके से आर्किटेक्चर चेंज हुआ, किस तरीके से आर्ट चेंज हुआ. There was a revival of Greek and Roman tradition which gave momentum to overall development. During the Renaissance, इसको Renaissance period बोलते हैं क्योंकि इस दौर में लोगों की थिंकिंग भी चेंज हो गई, लोगों ने न्यू चीजें एक्सेप्ट किया और नए-नए चेंजेस आ गए. There was a change in the outlook. During the Renaissance, humanitarianism is इंसानियत, लोगों के फीलिंग्स को समझना. पहले ऐसा नहीं था. यूरोपियंस वर नेवर, दे एक्सप्लॉइटेड इंडिया और इंडियंस के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा, उनको एक्सप्लॉइट किया, उनको टॉर्चर किया, उनको इल ट्रीट किया. लेकिन ये दौर था जब एक ह्यूमन फीलिंग्स, एक ह्यूमैनिटेरियनिज्म, एक इंसानियत का एक दौर चला. दैट इज कॉल्ड रेनेसेंस. देयर वाज अ चेंज इन द आउटलुक ऑफ ट्रीटिंग ईच अदर एज ह्यूमन बीइंग. लोगों को अच्छे तरीके से बर्ताव करना शुरू कर दिया. Instead of religion, man became center of all ideologies. अभी लोगों ने क्या किया था कि सिर्फ रिलीजन पे बेस नहीं किया था, सिर्फ रिलीजन की तरफ से ही सोचते नहीं थे. अभी उनकी थिंकिंग एकदम ब्रॉड हो गई थी. The reform movement spread throughout all sectors of human life. Through knowledge, science as well as different sections of art, we can observe the discoveries of reform movement. हम देखेंगे कि धीरे-धीरे से कौन सी चीजें गई और नई चीजें आ गई, डिस्कवर हुई. The art and literature of Renaissance period depict sentiments and emotions of human being. ये दौर में हम देखेंगे कि लोगों के सेंटिमेंट्स, लोगों के इमोशंस पे ज़्यादा चला था. लोगों ने एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया था. Literature was produced in the local language for better understanding to the common people. लोगों के लिए local language में बनाया गया था literature so that कि every person can understand and read it. During 1450 AD, Johannes Gutenberg, underline करो, from Germany discovered the printing press. During this discovery, new ideas, concepts and knowledge reached to all sections of society. जैसे जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंट हुआ, तभी लोगों तक बहुत अलग-अलग चीजें हिस्ट्री में पता चल गई और लोगों के थिंकिंग भी चेंजेस होने लगी. People started accepting. लोगों का नॉलेज बढ़ने लगा and people were curious to do it. Religious reform movement. The independent intellectuals attacked the old religious ideologies of Roman Catholic Church. The Christian priests were taking advantage of the ignorance of the people and were indulging in unnecessary rituals. They looted the people in the same name of the religion. The movement that began again is known as religious reform movement. Due to this movement, human freedom and rationalism gained more importance. Now, in this what happened? The Christian missionaries, they cheated people and they took advantage of the people and they looted people. Religion के नाम पे लोगों को लूटना शुरू कर दिया था. लोग ignorance थे, लोगों को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, बिकॉज पीपल डिड नॉट नो टू रीड एंड राइट. और उस दौरान लोगों ने किस तरीके से रिलीजन को चेंज किया, किस तरीके से लोगों ने रीड करके नॉलेज लेके समझ गए कि
ये चीजें ऐसी नहीं है, तो एक्सप्लेनेशन स्टॉप हो गया। Geographical discoveries, very important, 2 marks give reason. The Ottoman Turks conquered Constantinople, Istanbul, which was the capital of Byzantine Empire. The overland trade routes joining Asia and Europe went through the city. एशिया और यूरोप के साइड से ये ज़्यादा ये साइट्स थे, ये रूट्स थे, और टर्क्स ने अटैक करके कॉन्कर किया था और अभी पूरा जगह उनके अंडर आ गई थी, तो उन्होंने यूरोपियंस को वहाँ से जाने से रोक दिया था, पूरा रोड को ब्लॉक कर दिया था, पूरे रूट को उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। Since the Turks blocked the route, टर्क्स ने अपने कब्जे में आ गया था, उनके इसमें उन्होंने कॉन्कर कर लिया था, तो उन्होंने रूट्स पूरे ब्लॉक कर दिए थे, तो यूरोपियंस को आने के लिए रूट्स नहीं थे। There was a need of finding alternative trade routes for the European countries to reach Asia. एशिया आने के लिए अभी यूरोपियंस के लिए नए रास्तों की खोज करनी थी, क्योंकि टर्क्स ने ब्लॉक कर दिया था पूरे रूट्स। This led to a new phase of geographical discovery, और इस दौर में ब्रिटिशर्स ने, यूरोपियंस ने नए नए रास्तों की खोज की। Intellectual revolution in Europe. Due to changes during the Renaissance period, Europe proceeded from medieval to modern age. धीरे धीरे से यूरोपियंस medieval period to modern age में आ गए, मॉडर्निटी उन्होंने ज़्यादा एक्सेप्ट की, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा उन्होंने कुछ नए नए डिस्कवरी करके किए। Intellectual revolution took place in the same period. The society starts stepping out to the past ignorance and blind faith. लोगों ने, सोसाइटी ने क्या किया, लोगों ने क्या किया? Now, in this intellectual revolution in Europe during this period, societies they knew that there was a blind faith, superstition among them, and they started living it. उनका ignorance जो था, उनका जो beliefs थे, उनके जो अंधविश्वास था, वो सब को उन्होंने छोड़ दिया था और modernity को accept किया था। The pre-established customs and traditions came to be seen from a critical point of view. All these changes are addressed as intellectual revolution, which gave further momentum to scientific discoveries in Europe. लोगों का जो faith था, blind faith, superstition, ये सब अंधविश्वास हटते गया और लोग मॉडर्निटी की तरफ आ गए। इसके लिए पॉसिबल हो गया कि लोगों को नए नए चेंजेस, नए नए डिस्कवरी करने का मौका मिला। Revolution in political sphere. In the early stage of beginning of modern period in Europe, where political changes took place due to various revolutionary events during 18th as well as 19th century. This period is known as the Age of Revolution. During this period, there was development of parliamentary democracy in England. इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गया था, जो आज भी अपने कंट्री में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। There was parliamentary system is the head is prime minister. There was a change in the form of cabinet system. The Bill of Rights laid limitations on the power of the king. The sovereignty of parliament was established. King के powers को थोड़ा लिमिट किया गया था। King अपने विशेष सब पे डाला था, तो उनके पावर को भी कंट्रोल किया गया था और लोगों के विशेष पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। American War of Independence. With the background of revolutionary development in Europe, it is equally important to think about the American War of Independence. With the discovery of America, the European countries turned their attention towards this continent. अमेरिकन के कॉन्टिनेंट पे यूरोपियंस ने अपना रूट कर लिया उधर। The imperialist European countries took control of different region of America and established their colonies. अमेरिका में भी जाके उन्होंने ब्रिटिशर्स ने, इंग्लैंड ने अपने कॉलोनीज सेटअप करना शुरू कर दिए थे। इंग्लैंड established 13 colonies on the east coast of America. अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में 13 कॉलोनीज उन्होंने अपने सेटअप किए थे। Initially, England had nominal domination over these colonies, but later English Parliament laid oppressive restriction and taxes of these American colonies. पहले तो शुरुआत में ठीक था, लेकिन पार्लियामेंट ने इनके पर बहुत हैवी टैक्सेस डालने शुरू कर दिए और रेस्ट्रिक्शंस बहुत सारे डालने। रेस्ट्रिक्शन मतलब कुछ रुकावटें डालना, ऑब्स्ट्रक्शंस डालना। इंग्लैंड डिक्लेयर्ड वॉर टू सप्रेस दिस कॉलोनीज, और इंग्लैंड ने क्या सोचा, अभी अमेरिकन कोस्ट पे ये सब हमको काम करने में रोक रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं और बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा रहे हैं, तो वॉर करने का स्टार्ट किया, मतलब वॉर करने का सोचा इंग्लैंड ने। American colonies organized the army under the leadership of George Washington, अंडरलाइन करो, and finally won against England. जॉर्ज वाशिंगटन के अंडर लीडरशिप में वॉर हुआ और
जीत गए इंग्लैंड के अगेंस्ट, इंग्लैंड हार गई थी। दिस इवेंट इज नोन एज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके लिए इसको अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला गया है। A new nation known as United States of America, आज भी ये इसी नाम से जाना जाता है, अंडरलाइन करो। Known was federal government, written constitution, इनके पास written constitution है, and based on the principle of democracy was born. Democracy, where people get their own rights. French Revolution. In 1789, the people of France revolted against the uncontrolled and unjust monarchy and feudalism and established a republic. Now French people also revolted against the rule of king. This event is known as French Revolution. The French Revolution gave the world the three values. Underline करो, इनके revolution में तीन values लोगों को पहुंचाए. That is liberty, freedom, equality, एक समानता सबके लिए, एंड फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, सबको एक साथ में मिलजुल के ब्रदरहुड के हिसाब से रहना चाहिए। इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, अमंग द पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस, द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इन द लेटर पीरियड ऑफ 8th century, there was many technological innovation in Europe. There was production with the help of machines running off steam, steam पे चलने वाली machines बनाए। The cottage industry were replaced by big factories. पहले cottage industries like कि घरों में ही छोटी सी फैक्ट्री टाइप बना के, छोटी छोटी फैक्ट्रीज जैसे कि छोटी सी चक्की होती थी, ये सब छोड़ के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगे, फैक्ट्रीज बनने लगे। Machines came to be used instead of handlooms. हाथ का काम कम होने लगा और उनके जगह पे मशीन्स आ गए। Railway and steamer became the mode of transportation. स्टीमर और जो रेलवेज, ट्रेन्स, ये सब ट्रांसपोर्टेशन के एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन था। द एज ऑफ मशीन्स बिगैन एंड दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और दिस स्टार्टेड द एज ऑफ मशीन। मतलब अभी लोग जो हाथ से काम कर रहे थे, वो अभी लेबर जो लगता था, अभी वो काम मशीन्स कर रही थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगैन इन इंग्लैंड एंड देन स्प्रेड इन अदर पार्ट्स ऑफ वेस्ट। During this period, England enjoyed industrial prosperity and came to be known as world factory. इंग्लैंड ने बहुत ही ज़्यादा वेल्थ कमाया था और वर्ल्ड फैक्ट्री के नाम से उनको जाना जाता, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने बहुत ही इनोवेशन किया था। दैट इज दे हैड ब्रॉट द मशीन्स एंड मशीन्स मेक द वर्क फास्टर। द यूरोपियंस हैड ब्रॉट द मशीन्स इंस्टेड ऑफ हैंडलूम्स। Now all the work was done on machine and machine makes the work faster and the production more, और वो wealthier बनते जा। Rise of capitalism. With the discovery of new sea routes, now new sea routes were discovered because the Turks had blocked the routes, so Americans were very intelligent. They by sea routes, पानी के जरिए उन्होंने नए नए रास्ते खोज निकाले। Began a new era of trade between Europe and Asia, और नए नए रास्ते निकाले तो अभी ट्रेडिंग भी बहुत अच्छा हो रहा था, क्योंकि अभी नए नए रास्ते मालूम पड़ गए थे, तो एशिया और यूरोप के बीच में ट्रेड अभी बहुत ही अच्छा चल रहा था। Many traders came forward to trade with eastern countries to the sea route. बहुत सारे ट्रेडर्स जो थे, एक पर्सन एक ही कंट्री अलोन ट्रेड नहीं कर सकती, इसके लिए उसने सब ने मिल के सब एक साथ आए और एक साथ आके एक दूसरे के साथ, जो आज हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोलते हैं, ये बिजनेस एक ट्रेड उन्होंने स्टार्ट किया फ्रॉम कंट्री टू कंट्री बाय सी रूट। इट वाज नॉट इजी टू कैरी आउट ट्रेड सिंगल हैंडेडली एंड हेंस मेनी ट्रेडर्स केम टुगेदर। सब ट्रेडर्स एक साथ आए और एक दूसरे के कंट्री को जो भी नेसेसिटीज थे वो प्रोवाइड किए एंड एवरी कंट्री गॉट द इकोनॉमी। Thus there was a rise of many trading companies. इसके दौरान बहुत अलग अलग नए नए ट्रेडिंग कंपनीज आ गए। Trade with Oriental countries were very profitable and responsible for economic prosperity. Hence European rulers started giving military protection and trade concessions to these trading companies. Now मिलिट्री प्रोटेक्शन भी मिल रहा था इनको, सब चीज़ें, मतलब मॉडर्निटी आ रही थी, बहुत ही लोगों के लाइफ में चेंजेस आ रही थी, तो यहाँ पे मिलिट्री प्रोटेक्शन और ट्रेड कंसेशन। ट्रेड कंसेशन मतलब ट्रेड में जैसे टैक्स में थोड़ा कम टैक्स लगना, ये सब कंसेशन मिल रहा था। This led to accumulation of wealth in Europe, और इसकी वजह से यूरोप में बहुत ज़्यादा वेल्थ इकट्ठा हो गया था, बहुत ही पैसा इनके पास, वेल्थ इनके पास इकट्ठा हो गया था।
This property was used in the form of capital for trade and commerce, which led to the rise of capitalist economic system in Europe. और यूरोपियन ने ये वेल्थ को एज अ कमर्शियल, एज अ प्रॉपर्टी उनके लिए और एक बिजनेस के लिए कैपिटलिस्ट बन गए थे, लैंड ओनर्स बन गए थे और इस तरीके से यूरोप पूरा डेवलप हो गया था। कॉलोनिज्म, कॉलोनिज्म मीन्स, अंडरलाइन करो, कंट्री एक्सप्लॉइटिंग अनदर कंट्री बाय मेकिंग इट इनटू अ कॉलोनी। एक कंट्री दूसरे कंट्री पे जाके अपना पावर देना, अपना डोमिनेट करना और अपने कॉलोनीज वहाँ पे सेटअप करना, दैट इज कॉल्ड कॉलोनाइजेशन। A powerful country on the basis of economy and military strength occupies another region. Now, the country which is powerful with the army, the country which is powerful with the military strength and economy. Military strength मतलब उसके पास military अच्छा है और उसके पास पैसा बहुत है. And what that country did, it just went to the region and it dominated, it captured that region and it started ruling it. वहाँ पे एक कंट्री जो इकोनॉमिकली पैसों से अच्छी होती है, उसका मिलिट्री स्ट्रेंथ अच्छा रहता है और वो दूसरे कंट्री में जाके, दूसरे रीजन में जाके पूरा कब्जा कर लेती है और अपना कॉलोनी सेटअप करती है। तो पुअर कंट्रीज और पुअर रीजन्स कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। A powerful country on the basis of economy and military strength occupies another region and establishes political supremacy. और वहाँ पे जाके पूरी कॉलोनीज बना के अपना रूल चलाना और अपना पावर चलाने लगती है। This is known as colonization. Underline करो और bracket डालो, what is colonization? This tendency of colonization led to rise of imperialism among the Europeans. Imperialism means underline करो, a system in which a powerful country controls over countries by establishing overall domination and establishing many colonies. एक कंट्री दूसरे कंट्री में जो उसके पास इकोनॉमी बहुत रहता है, दूसरे कंट्री को जाके कैप्चर करती है और वहाँ पे पूरा डोमिनेट मतलब पूरा अपना कब्जा जमा लेती है और पूरा वो कंट्री को अपने कब्जे में कर ले, अपने अंडर कर लेती है और अपने रूल्स वहाँ पे चला लेती है। Many countries from Asian and African continent fell prey to this. बहुत सारे एशिया के और अफ्रीकन के जो कॉन्टिनेंट्स है ये यूरोपियंस के अंडर आ गए थे। An imperialist aspiration of the European nation, और यूरोपियन नेशंस के लिए बहुत अच्छा था क्योंकि उन्होंने अपने कॉलोनी सेटअप कर दिए थे, अपने पूरे रूल्स डाल दिए थे, अपना डोमिनेशन वहाँ पे स्टार्ट किया था, तो वेल्थ उनको ही आ रहा था ब्रिटिशर्स को। Imperialism of British East India Company in India. There was competition among European countries for acquiring trade. अभी धीरे धीरे से यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा था। Monopoly in India, the British established British East India Company in 1680 to carry out trade in India. This company took permission from Emperor Jahangir and established his factory in Surat. Emperor Jahangir से permission लिया इंडिया में और सूरत में उन्होंने अपना फैक्ट्री सेटअप किया इंग्लैंड में। The trade between India and England was carried out through this company और ये कंपनी के थ्रू इंडिया और इंग्लैंड के बीच ये ट्रेड चलने लगा। Struggle between English and French. England and France were rivals of the competition for trade in India. इंडिया में ट्रेड करने के लिए अभी फ्रेंच और ब्रिटिशर्स, इंग्लैंड दोनों का कंपटीशन चल रहा था। दोनों इंडिया पे उतना ही डोमिनेशन और उतना ही वेल्थ एक्वायर करना चाहते थे और ये दोनों के बीच कंपटीशन चल रहा था। Due to this, there were 3 wars fought between them, which is known as Carnatic Wars. अंडरलाइन करो, इनके दोनों के बीच में ट्रेड के लिए कंपटीशन की वजह से 3 वॉर चले। In the third Carnatic War, England finally defeated France. और थर्ड वॉर में जब ब्रिटिश और फ्रांस का बैटल हो गया तो लास्ट में ब्रिटिश ने फ्रांस को डिफीट कर दिया। ब्रिटिशर्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग विद मिलिट्री पावर। इंग्लैंड फाइनली डिफीटेड फ्रांस को पूरा डिफीट कर दिया। Therefore, now there was no strong European competitors for British East India Company in India. अब इंडिया में ब्रिटिशर्स के सामने कोई भी और कंट्री नहीं थी, स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं थी कि वो उसके साथ कंपटीशन करे, तो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही अच्छा हो गया था। Foundation of rule of India Company of Bengal. The Bengal province was one of the most prosperous provinces in India. In 1756 AD, Siraj-ud-Dawla became the Nawab of Bengal. East India Company officers misused the trade concession obtained from Mughal Emperor in Bengal provinces. Now Siraj-ud-Dawla was the Nawab और ब्रिटिशर्स यहाँ पे बंगाल में आके बहुत सारा बिजनेस के लिए जो कंसेशन मिला था उसको मिसयूज कर रहे थे।
The English built a fortification around the factory at Kolkata without permission of Nawab. And Sirajudaulah captured the factory of Kolkata. ब्रिटिशर्स ने उसकी फैक्ट्री को पूरा सीज किया था, इसके लिए सिराजुद्दौला ने वापस से वो फैक्ट्री को पूरा अपने कैप्चर कर लिया था. एंड दिस मेड डिसकंटेंटेड इन इंग्लैंड. इंग्लैंड को ये अच्छा नहीं लग रहा था. अंडरलाइन करो, रॉबर्ट क्लीव डिप्लोमेटिकली ब्राइब्ड मीर जाफर, the commander in chief of the Nawab's army, and also promised to make him the Nawab of Bengal. Nawab Sirajudaulah and the British troops went to Plassey in 1957. But under the leadership of Mir Jafar, the Nawab's army made no more actually join the battle, and hence Sirajudaulah was defeated. मीर जाफर को ब्रिटिशर्स ने लिया और मतलब लालच दिखाई कि सिराजुद्दौला हार जाता है तो तुमको नवाब बनाया जाएगा. तो उसने सेटिंग किया कि जब बैटल हो रहा था, वॉर हो रहा था, तो वो जो आर्मी था उसको लीड ही नहीं करने का था, जो सोल्जर्स थे उनको ऑर्डर ही नहीं दिया था फाइट करने के लिए अगेंस्ट. तो सब इसके लिए सिराजुद्दौला हार गया था और ब्रिटिशर्स जीत गए थे. मीर जाफर बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल. और जैसे प्रॉमिस किया था ब्रिटिशर्स ने, मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया विद द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश. बट लेटर ही स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश. फिर मीर जाफर बन गया, लेकिन वो भी थोड़े दिन ठीक था, लेकिन वो भी रेस्ट्रिक्शन लेने लगा क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा मिसयूज कर रहे थे पावर का. एंड हैंस हिज सन इन लॉ मीर कासिम वाज मेड. फिर इसके बाद मीर जाफर को हटाया और मीर कासिम को सन इन लॉ, उनके सन इन लॉ थे और उनको उन्होंने नवाब बनाया. मीर कासिम ट्राइड टू पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन द इलीगल ट्रेड. और मीर कासिम ने क्या किया था, जो इलीगल ट्रेड विदाउट पेइंग द टैक्स और इलीगल ट्रेड कर रहे थे ब्रिटिशर्स, उसके पर उसने बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन डाल दिए थे. और ब्रिटिश ने हैंस वंस अगेन मीर जाफर मेड द नवाब ऑफ बंगाल. फिर उसको हटा के वापस से मीर जाफर को ही नवाब बना दिया था. To restrict the activities of British in Bengal, Mir Qasim Sirajudaulah, the Nawab of Ayodhya, and Mughal Emperor Shah Alam formed an alliance and ran campaign. अभी ये देखा था और इन सब ने मिलके एक कैंपेन चलाया था against Britishers. In 1764, 80 Battle of Boxer was fought. Battle of Boxer was fought in Bihar. After this battle, British East India Company got the right to collect the revenue from Bengal. ये वॉर होने के बाद ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट मिला था कि रेवेन्यू मतलब लैंड टैक्स, लैंड पे जो टैक्स होता है वो कलेक्ट करने का पूरा परमिशन उनको ही मिला था. Province as per the Treaty of Allahabad. In this manner, the foundation of British rule in India was laid in Bengal. और धीरे धीरे से इसी तरीके से बंगाल में पूरा ब्रिटिश का रूल चल रहा था. ब्रिटिश मैसूर स्ट्रगल. हैदर अली from Mysore state rebelled and took control of Mysore. So हैदर अली थे मैसूर के नवाब. After the death of हैदर अली, his son टीपू सुल्तान became the ruler of Mysore. उनकी डेथ के बाद उनका जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने वो कंट्रोल किया था पूरा. उनके फादर का जो रूलर थे, जैसे रूल किया था वैसे टीपू सुल्तान भी एज अ रूलर बन गए थे हैदर अली के डेथ के बाद. टीपू सुल्तान became the ruler of Mysore. He tried his best to fight against the British. उन्होंने पूरी कोशिश की थी ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करने का. At the end, टीपू सुल्तान died in the Battle of श्रीरंगपट्टनम. और लास्ट में टीपू सुल्तान बैटल में ये इनका डेथ हो गई. In the manner, the British took control of the Mysore manor. और जब इनकी डेथ हुई तो ब्रिटिशर्स ने पूरा मैसूर को कब्जा कर लिया. अभी मैसूर भी इंडिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया था. धीरे धीरे से ब्रिटिशर्स ने हर जगह को कंट्रोल अपना कर लिया था. दैट इज डोमिनेटिंग, उनके अंडर आ गए थे ये जगह. ब्रिटिश कंट्रोल सिंध. To strengthen the British power in India, the English turned their attention towards northwest frontier. They feared that Russia might attack India through Afghanistan, and hence the English started establishing their influence over Afghanistan. The route towards Afghanistan went through Sindh. The British understood the importance of Sindh and hence captured it. ब्रिटिशर्स ने सिंध को भी कैप्चर किया क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उनको डर था कि रशिया अटैक करेगी अफगानिस्तान के थ्रू हेल्प लेके. तो इसके लिए ब्रिटिशर्स ने सिंध पूरा कैप्चर कर लिया था. फॉल ऑफ सिख पावर, वेरी इंपॉर्टेंट. इन द बिगिनिंग इन 19th century, the power in Punjab was in the hands of Ranjit Singh. रंजीत सिंह के हाथ में पावर था पूरा पंजाब का. After the death of Ranjit Singh, his minor son Duleep Singh was to the throne. उनकी डेथ के बाद उनका लड़का माइनर मतलब बिलो 18 उनको वो थ्रोन पे आया था. On his behalf, his mother Queen Jindan looked after the state affairs. उनका लड़का था, माइनर था, 18 इयर्स के बिलो था, लेकिन उसको ज्यादा तो मालूम नहीं था पूरा, तो उसके लिए उनकी मदर पूरा संभालती थी.
क्वीन जिंदन संभालती थी, बट कुड नॉट कीप कंट्रोल ओवर द ऑफिसर्स, लेकिन ऑफिसर्स के ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी. टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन द ब्रिटिश ब्राइड सम ऑफ दिस सिख सरदार, और उनको मालूम था कि ये कंट्रोल नहीं कर पा रही है, संभाल नहीं पा रही है, तो इसके लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कुछ सिख सरदारों को एक लालच दिखाई, ब्राइब दिया, और the Sikh community thought that the British will attack Punjab and hence they launched an attack on the Sikhs were defeated. In this first Anglo-Sikh war was Sikh were defeated. फिर सिख को लग रहा था कि सिख लोगों को लग रहा था कि ब्रिटिशर्स पूरा अटैक कर लेगी, इसके लिए वो वॉर के लिए तैयार हुए, लेकिन सिख ही इसमें डिफीट हो गए. बट स्टिल दिलीप सिंह रिमेन एट द थ्रोन, फिर भी दिलीप सिंह, उनका रंजीत सिंह के बेटे ही थ्रोन पे थे. But the growing impact of British over Punjab was not accepted by the Sikhs. But Sikhs did not tolerate what the Britishers tolerance, like Britishers were dominating so much and they could not tolerate it. Mulraj, officer of Multan, revolted against the British. British के against revolt start हुआ. Thousands of Sikh soldiers participated in the war against the British. हजारों Sikhs war में participate किए British के against. In the second war, the Sikhs had to face defeat again. वापस से ब्रिटिशर्स के सामने सिख को डिफीट होना पड़ा, वो हार गए थे. In 1849, the British finally captured the entire region of Punjab, और फिर ब्रिटिशर्स ने पंजाब का पूरा रीजन को अपने कंट्रोल में कैप्चर कर लिया था. The Marathas were important strong rulers in India. How did the British strengthen their foundation of rule in India by defeating the Marathas? We will study in the next chapter. नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मराठास के बारे में पढ़ेंगे. सो we have ended this lesson. Read the lesson very well and please solve these questions, all the questions on page 9. Okay, thank you so much.